Hello students, welcome to the Humanities Point. I'm your teacher, my name is Khurram. Students, I'll be teaching you geography. As we know, the geography is a very dynamic subject. It usually talks about the natural phenomena that takes around us. This geography includes, it talks about the geomorphology on earth we live, it talks about the climate that we face, it talks about the ecological system, and it talks about the beautiful dynamics of ocean geography. So in geography, it's not only the physical setting around us, it's basically this physical setting that leads us to interact in accordingly with the nature, making the impact of the human settlement. And these human settlements develop accordingly as how the physical setting is around us. So they are developed, or in a sense we can say human geography which gets developed after observing the complete physical setting around. Or physical geography is dependent basically, or we can say in a sense human geography, human settlement is directly and indirectly developed because of the physical geography. This dichotomy between these two processes, or between these two phenomena of geography, has been since decades. Let's talk about the UGC NET examinations. Geography being a very dynamic subject, it has many exams. We are here precisely talking about UGC NET examinations. Students, UGC NET examinations का क्या scene है that up to the 2018 this UGC NET examinations had different criteria. There was paper 1 is still there, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस का पेपर था, सिंपल. पेपर 2 जो था और पेपर बी जिसको बोलते हैं, पेपर बी कंस्टिट्यूटेड द 2 पेपर्स. ठीक है, पेपर बी के 2 पार्ट्स थे, पार्ट 1 पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट. एंड दिस इंक्लूडेड बेसिकली अप टू 2018. इसमें क्या सीन था, इट वाज ऑफलाइन एग्जाम देना होता था. And this paper 1 and paper 2, this constituted of 75 questions and this constituted of 50 questions. ठीक है, तो ये जो सेटिंग थी पेपर्स की, this was in such a manner that paper was all settled according to the scheme and there was no negative marking which is not still there, and this was online pattern. तो इसको चेंज करते क्या हुआ, एक तो ऑनलाइन से ऑफलाइन से पेपर ऑनलाइन आने लगे 2018 के बाद, and this question of 125 questions they were reduced for only the 100 questions. Now you have paper 1 जिसमें आपका पूरा जनरल्स आता है. इट इंक्लूड्स द क्वांटिटेटिव रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशंस, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट. इट टॉक्स अबाउट द हायर एजुकेशन सिस्टम, इट टॉक्स अबाउट द कम्युनिकेशन, इट टॉक्स अबाउट द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम्स, इट टॉक्स अबाउट द research, teaching, whole that paper 1 includes about the ICT, reasoning and logical reasoning, mathematical reasoning. This paper 1 is total constituting the 50 marks. But अगर हम पेपर बी की बात करें, अपने सब्जेक्ट की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, अब की बात करें, ज्योग्राफी बेसिकली ज्योग्राफी का सिलेबस जो है 2018 के बाद अपडेट हो गया. As per them, the syllabus has been changed or the syllabus has been modified. But as per the teachers, as per us, the syllabus has not been changed or it has not been updated. In fact, the syllabus which was there in a compressed manner, it has been elaborated. अब हर कोई चीज इन्होंने क्या की, इन्होंने हर कोई चीज elaborate करके आपको बता दी. ठीक, there were 10 units earlier, there were 10 units now. तो 10 यूनिट है आपकी ज्योग्राफी में, यूनिट 1 से लेके यूनिट 2, यूनिट 3 अप टू द यूनिट 10. एंड याद रखिएगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड द यूनिट 4, दिस इज कॉल्ड एज द फिजिकल ज्योग्राफी. एंड एवरी टाइम व्हाट हैज हैपेंड, इसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे. Every time what has happened, physical geography में समझो आप, there are every time 40 to 45 questions they are asking. कभी ये 50-55 questions, इन 100 questions की बात अब कर रहा हूँ मैं. At that time before when there were 125 questions, तब भी बहुत 40-45% समझो तब भी physical geography से आता था. अभी भी 45% questions physical geography से आते हैं. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सिलेबस का आपका.
याद रखिएगा ये जो चारों यूनिट्स है ये कंसेप्चुअल यूनिट्स है। पहला यूनिट आपका जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में है, जो आपकी जियो यानी कि अर्थ, मॉर्फोलॉजी, शेप, फॉर्म, कैसे बना, क्या फीचर्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, वेदरिंग, डेन्यूडेशन, साइकिल्स एंड द स्लो फॉर्मेशंस, थ्योरीज, एवरीथिंग, geomorphic hazards, avalanche, landslides, landform occurrences. These all basically is about the whole geomorphology, what has led to the shape of the earth where it is currently, how it is currently. ठीक है? So basically it will start from the origin and the evolution of the earth, and at the last topic it will end at the erosional surfaces. तो ये पूरा हम देखेंगे एक एक करके। एंड अपार्ट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दिस ओनली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर हम बात ना करें, ऐसे भी ये पूरा कंसेप्चुअल है फिजिकल ज्योग्राफी में। जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं ज्योग्राफी का, इवन इन यूपीएससी दे टेक ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल, वहां पर भी फिजिकल ज्योग्राफी की काफी अहमियत है। जब आप कभी कल इंटरव्यू देने जाओगे, फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंस है। व्हेन यू विल गो फॉर रिसर्च दीज डेज, पीएचडी करोगे तो एनवायरमेंट को लेके, ग्लेशियर्स को लेके, लैंडस्लाइड्स को लेके, ग्लोफ्स को लेके, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट को लेके काफी रिसर्च हो रहा है, क्योंकि दीज आर द एरियाज विच आर गेटिंग मोस्टली अफेक्टेड कंटेम्परेरी बाय द वर्च्यू ऑफ द क्लाइमेट चेंज डायनेमिक्स। तो इनको समझना, इस पोर्शन को अच्छे से होल्ड करना, इस पोर्शन को अच्छे से कंसेप्चुअलाइज करके दिमाग में रखना, हर एक प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। जियोमॉर्फोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यूनिट इज जियोमॉर्फोलॉजी, और ये चारों फिजिकल ज्योग्राफी है। जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरे यूनिट की बात अगर कर रहे, इट टॉक्स अबाउट द क्लाइमेटोलॉजी। ये तो समझ आ गया, दिस इज योर अर्थ, द डायनेमिक्स ऑफ द अर्थ, these mountains, these whatever the features it includes, mountains, deserts, plateaus, plain, जो भी है, this all is geomorphology. How is the shape of the earth, plate tectonics, whatever the tectonic shapes of the plates, and everything is about the plate tectonic, this what we call as geomorphology. Now if we talk about the second portion of this physical geography, unit 2 जो syllabus का है, वो आपका climatology, आपका क्लाइमेटोलॉजी के बारे में है। दिस क्लाइमेटोलॉजी इज बेसिकली टॉकिंग और द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट। नाउ वी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टडी एंड द weather and the climate. Weather is day-to-day conditions. We see the weather bulletin, we don't see the climate bulletin. We can see the climate report which might have changed, and that might have influenced. Being the climate change, basically climate change is a natural phenomena. It has to occur after every 30 years. That study of climate change which is occurring after 30 years, that is called as climatology. अब हम weatherology क्यों नहीं पढ़ते हैं? Weatherology is something day-to-day event, that's an effect in whole of this climate, जो हम सुबह भी देखते हैं, शाम में भी देखते हैं। But total, sum total of all these weather conditions average to be taken as 30 years is called as climate. और इस climate में क्या क्या features है, क्या क्या structure है, वो कैसे शुरू होता है? The best way to scheme every time, the best scheme to study about climatology all time has been to start to commence with the composition and structure of atmosphere. इसकी बाहरी परत जो है, एटमॉस्फेयर की बाहरी परत जो है, इसको पढ़ना। ये पोल्स है, ये इक्वेटर पे बड़ा है, थोड़ा एटमॉस्फेयर बाहर की ओर है with the convection currents. ये जो आपका बाहर वाला सरफेस टोटल है, this blue blanket of there, this is your atmosphere. सारी वेदर एक्टिविटीज इसी एटमॉस्फेयर में अकर होती है, बिकॉज इट हैज सच कंपोजिशन। वो कंपोजिशन क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद इट टॉक्स अबाउट द हीट बजट क्या है, हीट बजट कितना ज्यादा अगर होगा तो गर्म होगा अर्थ बहुत, अगर ज्यादा हीट बजट डिक्रीज नेगेटिव जाएगा तो ठंडा होगा। सो अर्थ हैज टू हैव अ बजट ऑफ द हीट, इतना जाना है, जितना आना है रेडिएशन उतना लॉन्ग वेव को वापस भी जाना है। देन देयर इज द हीट, तो प्रेशर एंड विंड्स तो होंगी, विंड्स होगी तो देयर माइट बी एयर मासेस, देयर माइट बी फ्रंट्स, एंड देन फ्रंट्स फॉरवेंटियस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। देन यू हैव द मॉनसून एक्टिविटीज, you have the ENSO, you have El Nino, La Nino, monsoonal activities, different hazards, hailstorms, cold waves. This all will be studied under the climatology. क्लाइमेटोलॉजी के बाद आगे बात करें तो यूनिट 3 जो है, इट टॉक्स अबाउट द ओशियोनोग्राफी। ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट डायनेमिक्स
ऑलमोस्ट एवरी कंटेम्प्रेरी रिसर्च इज, हम क्यों एनवायरनमेंट को लेकर रिसर्च करते हैं, कोई थीम एनवायरनमेंट को लेकर करेंगे, एनवायरनमेंट में क्लाइमेट आना है, क्लाइमेट के चेंज को लेकर आप रिसर्च करोगे, एरोसॉल्स पढ़ोगे, किसी भी चीज पे रिसर्च करोगे, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, किसी एरिया में ऐसा स्टडी एरिया लोगे तो वहां पर जियोमॉर्फोलॉजी इंक्लूड होगी। सो क्लाइमेट एंड जियोमॉर्फोलॉजी दे आर टोटली रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है, क्लाइमेट एंड जियोमॉर्फोलॉजी, एंड द बेस्ट स्कीम टू स्टडी द क्लाइमेटोलॉजी इज टू गो विद द ऑकरेंस। ऐसा नहीं कि बीच में आप एक टॉपिक उठाओ एंड सो उठाओ, आपको विंड्स के बारे में पता ना हो, ऐसे नहीं कि आप बीच में ही कोई भी टॉपिक खतरनाक वाला उठा दो, साइक्लोन्स उठा दो, यू डोंट नो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि आपको एयर मास उठा दो, आपको पता नहीं है इंसुलेशन क्या है। तो दीज थिंग्स हैव टू बी स्टडीड अकॉर्डिंगली। एडियाबैटिक पढ़ोगे तो मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पढ़ोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि विंड का प्रोसेस ऊपर जाने का क्या है। सो दिस हैज टू बी स्टार्टेड अकॉर्डिंगली इन अ वेरी chronological order or the hierarchical order, where from the very best fitted topic has to be studied at the commencement up to the end, ठीक है। तो उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, नाउ वी नो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद देयर इज एन ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी, ओशन का बेसिकली व्हाट constitutes the ocean, what is the relief of the ocean. Oceans are very important part, they constitute the 78% of the water, we get salt from it, we have the huge metropolis of the oceans, we have the this is also carbon sink, we have the coral reefs also there, we have so many of the phenomena originating from the ocean, we have the whole ecology, much ecology, diverse ecosystem in the oceans. So ocean को समझना, ocean के पानी की डेंसिटी को, ocean के पानी की सैलिनिटी को, इसकी सर्कुलेशन को, वेव्स को, टाइड्स को, सुनामीज को, साइक्लोन्स को, इसके रिलीफ्स को, इसके बॉटम को, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ओशनोग्राफी में ये कंप्लीट। उसके बाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 4 जो आपका पूरा है, दैट इज अ ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। पूरे एनवायरनमेंट के तो ओशनोग्राफी इट टॉक्स अबाउट दिस वाटर एंड एवरीथिंग। उसके बाद लास्ट इज होल बायोस्फीयर। Biosphere includes basically your lithosphere, it includes your hydrosphere, it includes your this atmosphere। तो ये तीनों चीजों को समझो, आपका लिथोस्फीयर अर्थ स्फीयर, या आपका समझो आपका हाइड्रोस्फीयर पानी वाला, और ये वाला पोर्शन आपका समझो दिस इज योर दिस बायोस्फीयर। तो तीनों को मिला के जो आपका बीच वाला पोर्शन आता है, ये तीनों को मिला के जो आपका बीच वाला पोर्शन आता है, दैट विल बी योर कॉल्ड एज द एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी। इसमें आपका हाइड्रोस्फीयर भी इंक्लूड, पानी भी है इसमें, आपकी हवा भी की बात कर रहे हो, जमीन की बात कर रहे हो। तो व्हेन वी से डूइंग अ रिसर्च इन द फिजिकल ज्योग्राफी, वी यूजुअली मैन कीप अ थीम ऑन द टेक अ थीम ऑफ द एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। एनवायरनमेंट की कोई भी थीम ले लो, बाय दैट वी मीन टेक एनीथिंग ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी व्हिच यू फील इज बेस्ट टू बी स्टडीड और वेयर यू फील देयर इज अ बेस्ट रिसर्च गैप दिस टाइम। तो ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट में सबसे पहले इकोसिस्टम का बेसिक देखेंगे, कैसे ह्यूमन इकोलॉजी क्या है, डीप इकोलॉजी, कुछ नया टॉपिक ऐड हुआ है इसमें। देयर आर सम 1 2 3 टॉपिक्स व्हिच हैव बीन एडेड व्हिच टॉक्स अबाउट द डीप इंपैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट व्हाइल वी टेक एनवायरनमेंट एज अ सेक्रेड एस्पेक्ट, और व्हाइल वी सी द माउंटेन्स एज समथिंग सेक्रेड लैंडफॉर्म्स, सो हाउ वी ट्रीट देम अकॉर्डिंगली, सो दैट्स द डिफरेंट कंसर्न। उसके बाद इसमें आपके एनवायरनमेंटल एथिक्स है, इसमें आपके ट्रॉपिकल फूड चेन्स है, कार्बन साइकिल्स है, एंड ह्यूमन इकोलॉजी है, यू हैव द इकोलॉजिकल pyramids, you have the pollutions, you have the eutrophications, Kyoto protocols and all these sustainable development goals। तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट। मतलब एक और चीज बता दूं, सिलेबस डजंट मीन सिलेबस, डजंट मीन दे हैव व्हाटएवर दे हैव पुट। अब ज्योग्राफी का जो एग्जाम है, इट्स नॉट दैट इजी व्हिच यूज्ड टू कम इन 2018 17 19। अब क्या है, बेसिकली 2 साल 3 साल बाद इस टाइम भी इवन द ज्योग्राफी एग्जामिनेशन इट्स नॉट दैट, हाँ 10-20 क्वेश्चंस पेपर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं। अगर आप पिछले 5-6 साल पेपर्स को रिवाइज करोगे, विच इज वेरी 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 मैंडेटरी टू रिवाइज द 5 ईयर 7 ईयर पेपर, आपको समझो रटना है उनको। उससे क्या होता है, एक तो आप पेपर रट रहे हो, पहली बात, अगर किस्मत अच्छी हो तो ठीक। दूसरी बात ये है, उससे आपको क्या होगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर का अप्रोच क्या है। बट अब यूं क्या हो गया, अब पेपर टोटली डिफरेंट आने लगा। वो पेपर टोटली इन डेप्थ स्टडी जिसने की होगी वो आराम से कर सकता है। नो डाउट यू कैन इजीली स्कोर 20-25 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस while just going through the last 7 year 8 year papers, but that's not enough। अब कट ऑफ की अगर मैं बताऊं तो, कट ऑफ की बात अगर मैं करूं तो पहले जनरल है, then you have the OBC, you have the EWS, you have the ST, you have the SC, you have the physical handicap category, so that's different concern। अगर हम जनरल को लेके एक पैरामीटर चले तो याद रखिएगा, उसी हिसाब से आप देखिए OBC का कट ऑफ 2% नीचे जाता है, और EVS का कट ऑफ 2 या 3% नीचे जाता है। उसके बाद ST SC का कट ऑफ 7-8% नीचे जाता है। अगर हम अब ऐसी बात करें, UGC नेट के कट ऑफ की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, अब की बात लेटेस्ट याद रखिए, जनरल स्कोर करने के लिए, जनरल को JRF स्कोर करने के लिए ही नीड्स नाउ 68% अबोव। याद रखिएगा, खुद काउंट कीजिए कितने क्वेश्चंस आपको स्कोर करने हैं, यानी कि पेपर 1 में कम से कम 35 क्वेश्चन तो मारो ही मारो, 32 to 35 आपको 100% श्योर करने ही है।
और पेपर 2 में याद रखिएगा, पेपर 2 में कम से कम अराउंड 72 to 75 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, देन यू विल बी एबल टू स्कोर 68 to 70 क्वेश्चंस। फिर से बता रहा हूं, पेपर बी में ज्योग्राफी में 100 में से कम 72 अबव क्वेश्चंस आपको सही होने ही होने हैं। पेपर 1 की बात अगर की जाए, अपने जनरल पेपर की बात की जाए, 32 to 35 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, देन यू कैन स्कोर द इजीली अराउंड 68 to 70% एंड दैट इज योर इजी वे टू क्वालिफाई जेआरएफ। नेट की बात मत करो, जेआरएफ की बात करो। अगर अब नेट की बात भी करते हैं तो जिसको समझो ऑलरेडी 5% 4% कम लेके चलो, अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कितने क्वेश्चंस करने हैं। बट एवरी पर्सन, नेट इज समथिंग यू कैन इजीली क्वालिफाई आफ्टर स्टडिंग, डूइंग द स्टडी फॉर 2-3-4 मंथ्स, नेट तो हो ही जाएगा, ठीक है। And now if you have to study for JRF, government will consider you as a scientist, junior scientist, will be getting the fellowship, which is very good for you. That basically impacts your financial stability. You will feel good when you have money every month. Government allows you a provisional fund of 40-35,000, whatever is the HR in your located state, respective state. But government should know that you are you deserve that 40,000. Government should know that this person, if I am allowing him 40,000 to be spent on him, and he is providing a provisional chunk of 30-40 lakhs rupees during the first 2 years of JRF or his PhD, एंड उसके बाद 3 साल बाद वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो रहा है, 4 साल का पीएचडी अगर है आपका, मान के चलो, तो उसके बाद गवर्नमेंट इज डूइंग एडिशन इन दैट मनी इफ यू क्वालिफाई एसआरएफ एग्जाम, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो गवर्नमेंट जब इतना पैसा दे रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये जो लड़का है या लड़की है, he deserves that, he should be, he has qualified the examination। कम से कम 40,000 लोग एवरेज ज्योग्राफी का एग्जाम देते हैं, उसमें से 150 या 200 बच्चों का जेआरएफ होता है बस। तो जेआरएफ इतने बच्चों का, तो that guy should be, that girl should be genius, that girl should deserve this obviously money, that girl should know how the cyclone basically occurs, she should know the technicality, the barometric pressure, the outside core, wind core, she should know everything, the difference between temperature, topicals, how the rain pours, what are the technicality, adiabatic, इसको डिटेल में सब पता होना चाहिए। तो पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। अगर आप कैसे भी ऐसे भी तैसे लेके जेआरएफ ले रहे हो तो का मार के जेआरएफ ले रहे हो, क्योंकि ले भी सकते हो, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इफ यू आर वेरी 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 लकी, बट ऑलवेज बिलीव दैट हार्ड वर्क इज बीटिंग द टैलेंट एवरीवेयर नाउ, ठीक है। हार्ड वर्क करोगे तो हर चीज अच्छी होगी, बाद में रिसर्च में जाओगे, इंटरेस्ट से जाओगे तो बहुत अच्छा रिसर्च करोगे, अदरवाइज जेआरएफ लेके क्या करोगे अगर रिसर्च नहीं करना है तो, ठीक है। सो यू हैव टू गो वेरी, यू हैव टू यूज योर माइंड हाउ टू स्टडी फॉर ऑल दिस एग्जामिनेशंस। तो उसके बाद खैर बात करते हैं अब एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। नाउ दिस फिनिशेस योर होल फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। दिस फिनिशेस योर होल फिजिकल ज्योग्राफी। 4 यूनिट है, पहले 4 यूनिट है आपके फिजिकल ज्योग्राफी की। उसके बाद हम बात करते हैं 5वें यूनिट की, दैट कंप्राइजेस योर दिस व्हाट वी कॉल एज now the time comes about the human geography, ठीक है। फिजिकल खत्म, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट्स। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें, इसमें आपके 5th यूनिट से स्टार्ट होता है। जो पहला यूनिट स्टार्ट होता है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, यूनिट 5 पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ठीक है। पहले मैं मार्क्स के क्राइटेरिया आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि यूनिट 5 में 4 क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 6 में 10 आएंगे, नहीं। एक चीज याद रखिएगा, फिजिकल में एवरेज के बता चल रहा हूं, फिजिकल में 40 to 45 और 30 to 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन लेके चलो। उसके बाद 30 to 40 आप ह्यूमन वाले पार्ट में लेके चलो, जिसमें आपका सब आ रहा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड उसके बाद आप 10 से 12 क्वेश्चन लेके अपना ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में लेके चलो, जिसमें आपका कार्टोग्राफी, जिसमें आपका जीआईएस, जिसमें आपका रिमोट सेंसिंग, जिसमें आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये सब मिला के एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड थॉट, पहले 25-30 क्वेश्चन आते थे उसमें, अब ऐसा नहीं है, 5, 10, 12 क्वेश्चंस मैक्स, 12 to 15 क्वेश्चन, कभी कभी 15 हद हो जाएगी, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन मान के चलो, कभी कभी 13 क्वेश्चन, ठीक है। 13, तो ये 13 और बेसिकली ये लेट्स टेक इट 40, लेट्स टेक इट 35 हो गए, 75, लेट्स टेक इट दिस ऑल जो रेस्ट वट एवर इज देयर, दिस कंसिडर्ड 25 मार्क्स, ठीक है। तो या 20 मार्क्स, तो ये 40-40-20 का जो डिवीजन है, अकॉर्डिंगली दिस वुड बी देयर, यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। यूनिट 5 आप ऐसा मत बोला यूनिट 5, क्योंकि इन्होंने ऊपर हेडिंग लिखी है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, उसके नीचे इन्होंने पहले पॉपुलेशन ज्योग्राफी दिया है, फिर उसके नीचे इन्होंने सेटलमेंट ज्योग्राफी दिया है, ठीक है। पहला इसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी दिया पार्ट ए, सेटलमेंट ज्योग्राफी दिया है। तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट इज बेसिकली सेम थिंग। पॉपुलेशन होगी जहां पर न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन हो, आइसोलेटेड पॉपुलेशन हो, कंजेस्टेड पॉपुलेशन हो, व्हाटएवर इज देयर, दे क्रिएट अ सेटलमेंट पैटर्न। तो पॉपुलेशन को पढ़ेंगे तो अब ये पॉपुलेशन कहां पर होगी, पॉपुलेशन विल गेट डेवलप देयर बेसिकली वेयर वुड बी द सम गुड फिजिकल सेटिंग फॉर द पीपल टू रिजाइड ऑन।
पॉपुलेशन कहाँ पे डेवलप होगी, जहाँ पे लोगों को फायदा है. देयर विल बी द मेनी कंडीशंस विल डेवलप फॉर द पॉपुलेशन. इधर माइग्रेशंस है, आउट माइग्रेशंस है, इन माइग्रेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली एनालिसिस है, कैसे लोग माइग्रेशन के ट्रेंड्स है. उसमें आपका फिर पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंट है सेंसस. सेंसस बेसिकली सैंपल सर्वे, सेंसस, ये चीज़ों पे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो हर बार आते ही आते हैं. ठीक है, ये याद रखिएगा. सेंसस पे 3-4 क्वेश्चन तो लेके चलो, 3 नहीं 3 तो लेके चलो. ठीक है, उसके बाद आपकी डिफरेंट थ्योरीज है, माल्थस थ्योरी है, उसके बाद आपका थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इनको कहते हैं. उसमें माइग्रेशन के टाइप्स देखने हैं, एज सेक्स पिरामिड देखना है, अर्बन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एजुकेशनल, पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया की. ये 1-2 टॉपिक्स है इसमें पॉपुलेशन पॉलिसीज इन डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज जो थोड़ा ऐड हो गए. पहले भी क्वेश्चन आते थे बट अब थोड़ा ना लिख दिया है इसमें. ठीक है, तो उसके बाद यू हैव द दिस माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन क्या होता है, ये सब चीजें देखनी है. रिकार्डो की पॉपुलेशन, माल्थस एडलर्स पे क्वेश्चन आता है 1-2, तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से भी 6 क्वेश्चन इस टोटल पॉपुलेशन ज्योग्राफी से लेके चलो. फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात की जाए, सेटलमेंट पॉपुलेशन है तो सेटलमेंट बन गई. क्या है, थ्योरीज ऑफ सेटलमेंट, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, सोशल सेग्रीगेशन, यू हैव देन डिफरेंट. हाँ, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज गई है, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स. इसमें आपका गॉर्डन चिल्डे की थ्योरी दी गई है, इसमें आपका हेनरी पेरिन की थ्योरी गई है और लेविस ममफोर्ड की थ्योरी दी गई है. दीज आर द सेटलमेंट ज्योग्राफर. दे हैव टॉक्ड अबाउट हाउ द ओरिजिन ऑफ theory, how they talked about the origin of the towns or the theories about the, these are the theories which describe the origin of the towns. तो ये 3 इन्होंने ऐड किया है इसमें और ये बाकी प्रोसेस भी सेम है. तो इस यूनिट 5 में लेके आप चलो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपको आएंगे. ठीक है, उसके बाद यूनिट 6 बेसिकली टॉक्स अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द रीजनल डेवलपमेंट. यूनिट 6 ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द रीजनल डेवलपमेंट. अब ये थोड़ा अलग है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट. अब ये वाला जो यूनिट है, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द रीजनल डेवलपमेंट, दिस हैज गेन मोमेंटम. रीजनल डेवलपमेंट पे, ग्लोबलाइजेशन पे, बेसिकली नेचुरल रिसोर्स की क्लासिफिकेशन पे, एनर्जी क्राइसिस पे, फैक्टर्स दैट इफेक्ट द स्पेशियल व्हाट वी कॉल एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रीजनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पे 2020 के पेपर में 10, 15, 12 क्वेश्चंस सिर्फ रीजनिंग और असर्शन बेसिस पे थे, रीजनिंग असर्शन बेस पे. तो दिस यू डोंट हैव टू इग्नोर द रीजनल ज्योग्राफी एनी हाउ नाउ, क्योंकि रीजन इज गेटिंग द मेन फोकस डे बाय डे. ठीक है, डायकोटमी वगैरह जब पढ़ोगे ना तो समझ आएगा, फिजिकल से डायकोटमी, सिस्टमैटिक से रीजनल की डायकोटमी, फिजिकल से ह्यूमन की डायकोटमी, ये क्या था, ये क्यों था, इस पे काम क्यों हो रहा है, क्वांटिटेटिव रिलेशन ने क्या बात की, ये सब चीजें बाद में डिटेल में क्लियर हो जाएंगी हमको. बट यहाँ पर याद रखिएगा रीजनल एम्फेसिस, रीजनल कोरियोग्राफी, जो बाद में क्या था कैसे था वो हम पूरा थॉट में देखेंगे, वो उन चीजों पर बात करेंगे. तो यहाँ पे समझिएगा यूं शॉर्ट में अभी फिलहाल कि रीजनल ज्योग्राफी इज गेटिंग मोमेंटम. इस पे क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं. यू हैव टू get ready, you have to keep yourself ready, embraced or ready with this regional geographical concepts, globalization, indexes क्या है, HDI वगैरह क्या है, इन पर क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद इसी यूनिट में, छठे यूनिट में they have talked about agricultural geography, industrial geography. ठीक है, एक पार्ट एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, agricultural geography, industrial geography, geography of transport and trade, transport and trade. तो ये सब चीजें बेसिकली रिलेटेड है. क्यों? वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं. सपोज एक एरिया है बिहार का, दिस इज द बिहार रीजन, and here we have now the physical setting of the Bihar, physical mineral resources, the rock structure of Bihar is such that there is a huge amount of resources located. तो क्या हुआ, सुनो क्या हुआ, फिजिकल सेटिंग कैसे डेवलप करती है रीजन को. नो मैटर लेटर ऑन देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द हाउ यू पुट आउट दोज रिसोर्सेज, हाउ यू गेट द प्रॉफिट, हाउ यू गिव द प्रॉफिट एंड मेक देम डिप्राइव्ड, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी ऑफ फॉरगेट अबाउट दैट दिस टाइम. आई एम सिंपली टॉकिंग एग्जांपल. ठीक है, तो यहाँ पे एक एरिया है विच इज वेरी रिच ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, अब क्या होगा, this is basically because of rock formations which are there, minerals in the rocks which have been now ready with this, good resources are for us, we have to use them. People will come, they will settle around the area, making them good congested area. लोग आएंगे रहेंगे, अब लोग आएंगे रहेंगे, उनको जाना भी होगा. और समझो सिंपली देयर इज अ रिवर आल्सो, पीपल कम एंड सेटलमेंट स्टार्ट्स ओवर देयर. नाउ वंस द पीपल कम, व्हाट विल हैपन ऑन दिस फिजिकल ज्योग्राफी, human contact got started, है ना. दिस हाउ they relate, things are related.
ह्यूमन कंटेक्ट गॉट स्टार्टेड, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ह्यूमन कंटेक्ट इधर आने लगे, रहने लगे। अब उसके साथ दे बिगेन टू डू देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक माइनिंग दीज रिसोर्सेज एंड ट्रेडिंग दीज रिसोर्सेज। तो सारी चीजें, रोड ट्रांसपोर्ट भी बढ़ने लगे, डेवलप होने लगा रोड भी, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स ऑपरेट, रोड बढ़ने लगा, रिसोर्सेज बढ़ने लगा, टूल्स आने लगे, दे हैव स्टार्टेड टू डू द एग्रीकल्चर आल्सो, दिस इज एवरी एग्रीकल्चर स्टार्ट होने लगा, चीजें आने लगी, अल्टीमेटली वन मोर नोशन गेट्स, वन मोर कंसेप्ट डेवलप्स हियर, पॉलिटिक्स आने लगी। तो दिस ज्योग्राफी इज basically talking about everything apart from the physical setting which is there. This geography leads to the development of human settlements. This human settlement developed to the particular pattern of, you know, economic development or the transport or the road or anything such development, such activity. We can say the geography of trade and transport gets started commenced by this particular physical setting of the resources, or this basically leads to the whole, this is called as region, ठीक है। और यहाँ पे basically regional geography शुरू होती है। यहाँ पे इसके पीछे क्या politics, बाद में कैसे क्या Speakman and all that theories, Rimland, how the policies, political policies get revolved around this whole setup, उसमें political geography में देखा जाएगा कैसे economic forums बने, कैसे different economic development blocks बने, कैसे cooperation, SAARC वगैरह चीजें आ गई डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, so geography is accompanied by history always, history is always accompanied, हेरोडोटस ने बोला था geography is accompanied by history always, history है तो history जब हम बोलते हैं ये चीज हुई थी, सपोज 1947 में